Good morning, students. This is the last probable lecture for three-dimensional geometry. See, आपके नए सिलेबस के टेक्स्ट बुक के हिसाब से the chapter of vectors and 3D has been combined. So what I have thought is कि I today take some numericals from your new textbook because ऐसे बहुत सारे numericals हैं जो पुराने टेक्स्ट बुक में है बट नए में नहीं है, जो नए में है वो पुराने में नहीं है. So I am just taking the reference of both the books and I will be solving with the numericals. तो last lecture में three-dimensional geometry के last lecture में what did we observe was we had an equation a bar dot b bar is equal to 0. मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करने हैं? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 is equal to 0. a1 b1 c1 are the direction ratios of first vector or a line and parallelly a2 b2 c2 are the direction ratios of the second vector, that is the second line. Today मैं ऐसे क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो बोर्ड के पेपर्स में बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, but then they are given in the textbooks and we have to solve them because maybe these numericals can be asked for your JEE का syllabus. क्वेश्चन सिंपल है but आपको थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. The first question, अभी नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से आफ्टर द चैप्टर उन्होंने एक 45-50 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट दिया है, तो वो असाइनमेंट में से मैं एक क्वेश्चन आज यहाँ पे आपको सिखाऊंगा. The question is find the angle between any two vectors whose direction cosines are given by the relation. The relation is 6mn minus 2nn plus 5lm equal to 0 and 3l plus m plus 5n equal to 0. See, many students don't even understand कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है एंड इसमें हमको एग्जैक्टली क्या करना है. तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि आपको कोई भी दो वेक्टर्स या फिर कोई भी दो लाइंस में जो एंगल है वो एंगल की वैल्यू निकालनी है if the direction cosines of those two vectors are given by these two relations. अभी अगर आप फॉर्मूला की लिस्ट में चले जाओ तो आपको cos थीटा का एक फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था. मॉड्यूलस में a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 and the factor is divided by square root में a1 square b1 square c1 square a2 square b2 square और c2 square. तो अगर मुझे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो from these two equations I have to find these six variables. Now what is the relation between direction, cosines and ratios? So in the very first chapter, the very first lecture, I gave you the relation between direction, cosines and direction ratios. L upon A, M upon B, N upon C. If it is a constant number, then the numerator number is the DC and the denominator number is the DR. Now from these two equations, how do we prepare such kind of relation? और ऐसे हम लोग को दो रिलेशंस निकालने हैं क्योंकि हमें टोटल a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे दो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो उसके लिए ये न्यूमेरिकल का जो स्टार्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट पॉइंट कैसा है? इक्वेशंस दो है बट हमारे पास वेरिएबल्स तीन है. L, M, N ऐसे तीन वेरिएबल्स है and if we have two equations and three variables तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए what I am doing is I will represent a variable M in terms of the remaining two variables, that is 3L plus 5N. क्या किया मैंने? सिर्फ ये दो टर्म्स का एडिशन RHS में शिफ्ट कर दिया. I will name this as equation number 1.
Now substitute this equation in my first equation. So what do I get is, therefore 6m, 6 into bracket ये m की वैल्यू है तो माइनस 3l प्लस 5n ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2nl keep it as it is plus 5l और मल्टीप्लाइड बाय m तो माइनस 3l plus 5n and this equation is equal to 0. अभी आपको ये पूरा इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है. How do you solve that? So minus 6 into 3l is minus 18l. Minus 6 into 5n is equal to minus 30n और ब्रैकेट के पावर है n तो I keep that n as it is. Minus 2nl वैसे ही रख दिया. अभी यहाँ पे 5l into minus 3l तो minus 15l square. Are you getting it? 5l into minus 3l is minus 15l square and plus into plus. But यहाँ पे minus है तो 5 5s are 25. nl is equal to 0. अभी ये ब्रैकेट एक्सपांड करो. माइनस 18ln माइनस 18 माइनस 30n स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 15l स्क्वायर माइनस 25nl इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, ये जो n स्क्वायर और l स्क्वायर के टर्म्स हैं वो आई राइट एज द एक्सट्रीम फैक्टर्स, एक्सट्रीम टर्म्स. मतलब पहले x स्क्वायर लिखा बाद में l स्क्वायर एंड ये जो तीन टर्म्स हैं वो मैं कंबाइन कर दूंगा. माइनस 18 माइनस 2 इज माइनस 20 माइनस 20 माइनस 25 इज माइनस 45 nl और ये आ गया माइनस 15l स्क्वायर इज 0. अभी यहाँ पे ये जो तीन फैक्टर्स है दोस कैन बी रेड्यूस्ड by dividing. यहाँ पे I write dividing by minus 15. So what do I get? Minus 15 upon minus 15 मतलब 1l square. ये minus minus plus हो जाएगा 3nl because 15 3s are 45 and 30 upon minus 15 is equal to 0. So यहाँ पे I have a quadratic equation in terms of two variables, that is n and l. See, आप लोग ने अपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, बट यहाँ पे आपको डबल वेरिएबल करना है. मेथड सेम एज द प्रीवियस एग्जांपल्स, मतलब इन द प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, बट यहाँ पे सिर्फ व्हेन यू टेक कॉमन फैक्टर्स आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा. I'll just show you क्या करना है. Multiplication should be 1 into 2 and addition should be 3. तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ के निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 है और एडिशन 3 है. तो हाउ डू यू फाइंड द फैक्टर्स? तो l स्क्वायर 1 2 प्लस 2n स्क्वायर is 0. Multiplication 2 and addition 3. The numbers are 1 and 2. Now from these two terms you can take l common. So bracket में आपको क्या मिलेगा? l plus n. From these two terms you have to take constant as well as variable common. तो 2n. तो bracket में क्या मिलेगा? l plus n equal to 0. So now l plus 2n, l plus n is equal to 0 and therefore l is equal to minus 2n or l is equal to minus n. यहाँ तक समझ में आ गया? I'll just revise it once. First कोई भी एक वेरिएबल, इसी मैंने यहाँ पे n क्यों लिया? क्योंकि
कि ये दोनों का कोएफिशिएंट अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने m को, जिसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया एज द कॉम्बिनेशन ऑफ n और l। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। सिंपलीफाई करने के बाद आई हैव अ डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैंने सिंपलीफाई किया। आई गॉट टू रूट्स, मतलब आई गॉट टू रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ l और n। अभी यहां पे जो मैं कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं, ये न्यूमेरिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। कैसे करना है देख लो। If l is equal to minus 2n, this same equation can be written as, समझ में आ रहा है? मैंने रेशो के फॉर्म में लिख दिया l upon minus 2 n upon 1, बट यहां पे m फैक्टर है क्या? नहीं है, तो वो कहां से लाएंगे? तो l is equal to minus 2n यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I will write from equation 1 m is equal to minus 3l plus 5n. But what is l? Minus 2n. Substitute करो। 3 multiplied by minus 2n, minus 6n plus 5n. Simplify this. m is equal to, ये minus n और minus minus हो गया plus n, तो this is n. Now l upon minus 2 is equal to n upon 1. यहां पे भी डिवीजन में you have 1. तो if I compare this ratio with this ratio, तो दोनों के RHS में I have n by 1, तो can I say l upon minus 2 is equal to m upon 1 is equal to n upon 1? समझ में आ रहा है? Now this ratio is compared with this. So now what do I get? Therefore a1, b1 and c1 are minus 2, 1 or 1. Denominator's value is nothing but the direction ratio का number. अभी similarly ये जो इक्वेशन है उसमें से आप वापस l और n का रिलेशन निकालो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज m के फॉर्म में और एक रेशियो निकालो, कंपेयर करो, डिनोमिनेटर्स लेके आओ, तो यू विल गेट द आंसर फॉर a2, b2 एंड c2। वो कैसे करना है? आई विल डू इट ओवर हियर। आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट। I write point number 2. If l is equal to minus n, that is nothing but l upon minus 1 is n upon 1. ठीक है? अभी ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो from 1 m is equal to minus, अभी डायरेक्टली करो, 3 into minus n, बरोबर, प्लस 5n, ये हो गया 2n, बट बाहर माइनस साइन है। अभी यहां पे n के नीचे मुझे 1 चाहिए, तो माय रिलेशन विल बी m upon minus 2 is equal to n upon 1. Now if I compare this ratio with this ratio, what do I get? अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल जो है वो सिंपलीफाई हो चुका है। तो therefore l by minus 1, m by minus 2, n by 1, and if I compare this equation with this, so I get my final three numbers a2, b2, c2 as minus 1, minus 2. Now you have to say we know that cos theta is equal to, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखो, और ये जो 6 नंबर्स आपको यहाँ पे मिले हैं वो उसमें पुट कर दो। सो आई विल राइट cos theta
theta is equal to mod a1 multiplied by a2 minus 2 into minus 1 plus 2, b1 multiplied by b2 1 into minus 2 minus 2, c1 multiplied by c2 1 into 1 1 divided by a1 square b1 square c1 square 4 plus 1 plus 1 6 a2 square b2 square c2 square वापस 4 plus 1 plus 1 6 mod complete. Now plus 2 minus 2 cancelled out, numerator में है 1, root 6 into root 6 is 6, therefore I have cos theta is equal to 1 by 6 and therefore I say theta as cos inverse of 6 and this equation will be my final solution. तो ये न्यूमेरिकल सीबीएसई के सिलेबस में इफ अगर पूछा गया तो 6 मार्क्स न्यूमेरिकल एंड अगर स्टेट बोर्ड के सिलेबस में आया तो दिस इज द 4 मार्क्स न्यूमेरिकल। ऐसा और एक न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में है, बट अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल्स ये पार्ट में चाहिए तो द सीईटी बुक दैट आई हैव बीन गिविंग टू यू और जिसने ले लिया है ऑलरेडी मेरे पास से, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ये पार्ट पे डिपेंडेंट है, तो यू कैन रेफर दैट बुक, यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड वेरीफाई। बट पहले आपको ये न्यूमेरिकल एक बार एटलीस्ट थ्योरेटिकली करना पड़ेगा। तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, गो थ्रू दिस सेशन पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल आप पॉज प्ले क्लॉज प्ले करके जब लिखोगे उसके बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा सिंपल, थ्योरी के लिए सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल का तो आपको आंसर लर्न करना है और दूसरा जो है उसका मैं टेक्निक आपको दिखाऊंगा कि वो न्यूमेरिकल सीईटी में कैसे आप अप्रोच करोगे। सो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। So my next numerical is we have to find the direction ratios of a vector perpendicular to. Question ऐसा है, find the direction ratios of a vector perpendicular to two lines या फिर कोई भी two vectors whose direction ratios are given by the numerical says -2 1 -1 and -3 -4 1। सी ये न्यूमेरिकल का जो सीईटी हिंट है या फिर ये न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन हिंट है वो मैंने ऑलरेडी हमारे प्रॉपर्टी सेक्शन में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग दैट पार्ट आई जस्ट रिवाइज इट कि अगर कोई भी एक वेक्टर कोई भी दूसरे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, मान लो c बार इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार, तो c बार इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a बार एंड b बार। इट इज नथिंग बट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कोई भी आप रूल पकड़ लो, मैथमेटिक्स में इट गोज द सेम वे। तो अगर मुझे एक वेक्टर ऐसा है जो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, जिन दो वेक्टर्स के मतलब a बार और b बार के अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज प्रोवाइड किए हैं, तो अगर मुझे c बार का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो इन शॉर्ट मुझे c बार ये वेक्टर निकालना है। तो हाउ डू आई फाइंड द वेक्टर? तो आई स्टार्ट बाय सेइंग वी नो दैट c बार इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। एंड how do you find the cross product of any two vectors? मॉड्यूलस में मतलब डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो i j k, सेकेंड रो में ये डायरेक्शन रेशियोज -2 1 -1 एंड थर्ड रो में ये डायरेक्शन रेशियोज। अभी आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो i इंटू ब्रैकेट ये 1 और ये -4, तो इट इज -3 माइनस j इंटू ब्रैकेट ये -2 और ये -3 ही रहेगा,
तो इट इज -5 प्लस k इंटू ब्रैकेट ये a और ये +3 which is equal to 11. So now this is equal to -3i plus 5j plus 11k. ये हो गया C का. But they have asked me to write the direction ratios. तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन पार्ट में इतना ही लिखूंगा. Therefore, the direction ratios of the vector C bar are -3, 5 and 11 respectively. I, J, K coefficients उठा लो and those are nothing but the direction ratios of that given vector. तो ये न्यूमेरिकल आपको सीईटी के पेपर्स में, थ्योरी के पेपर्स में तो ये न्यूमेरिकल n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया है, तो ये न्यूमेरिकल आपको 110% बिफोर यू गो फॉर द बोर्ड पेपर्स करना ही पड़ेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा सिंपल है. You just have to calculate the cross product. Question number 3. ये न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है and as per your new syllabus this question is not mentioned in the textbook. See ये सारा टेक्स्ट बुक का जो ओरिएंटेशन है उन्होंने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है. The textbook content is actually some mismatch of the syllabus of CBSE and state board. तो अगर आप syllabus स्टडी करते हो and if you get the old syllabus textbook तो वो भी आप साथ में रखो, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो पुराने वाले में से मिलेंगे, नए वाले में एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं, but those are bit confusing if you don't know the actual theoretical part of the chapter. The next question is ये न्यूमेरिकल मार्च 2016 के बोर्ड पेपर्स में एज अ एमसीक्यू पूछा गया था. The direct question was given, options were given, you just have to take mark. थ्योरी में ये न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, show that angle between any two diagonals of a cube is cos inverse 1/3. समझा क्या लिखा है? Show that the angle between any two diagonals of a cube is cos inverse 1/3. ये सेम न्यूमेरिकल आपको सीईटी पेपर्स में कैसे पूछा जाएगा? The angle between any two diagonals of a cube is dash and you have to mark this answer. अभी ये न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ अ क्यूब. आई होप यू नो हाउ टू ड्रॉ अ क्यूब. स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, उसके अंदर और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, देन जस्ट एक्सटेंड द एजेस. ये यहाँ पे दिस एंड दिस. नेम द एक्सिस x y z. दिस इज माय ओरिजिन. अभी हम मुझे वर्टाइसेस के नेमिंग करते हैं, तो E F और G. सी अभी क्वेश्चन पूछा है एंगल्स के लिए, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द एंगल्स, तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एंगल्स का क्या फॉर्मूला सिखाया था? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड सो ऑन. मतलब अगर मुझे ये क्यूब के कोई भी दो डायगोनल्स के एंगल निकालना है तो उनके मुझे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे. और कोई भी वेक्टर या फिर कोई भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलता है? when we have the coordinates of their vertices. तो यहाँ पे अगर मुझे a b c d e f g o इन सबके अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो I have to make a simple assumption. Assumption is let m या फिर कोई भी वेरिएबल जो आपको अच्छा लगे be the edge length. Edge length मतलब this length is m. So now if this is m, so how do I write the coordinates of the cube vertices? m 0 0.
because the point is on x-axis. Y or z 0. This will be m 0 because the point is in the xy plane, तो उसका z 0 होगा. This is 0 m 0. zy plane या फिर yz plane, तो 0 m m 0 0 m z axis, m 0 m yz xz plane. This point m m m, it lie in all three planes, and this is my origin by default 0 0 0. Now I am saying, let how many diagonals does a cube have? तो 4. यहां पे कौन से हैं? OG, AD, BE and CF. तो कोई भी दो डायगोनल्स चूज करने हैं, तो let AD and OG be the diagonals whose direction ratios are A1, B1, C1 and A2, B2, C2 respectively. अभी आपको वर्टाइसेस पे से डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने हैं वो मैंने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स लिए हैं. x2 x1, y2 y1, z2 z1. तो अगर AD का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो देखो 0 m, x2 x1, y2 y1, z2 z1, m m. समझ में आ रहा है? A2, B2, C2, OG, G O, ये सब 0 है, तो m - 0, m - 0, m - 0, m m और m. अभी लिखो फॉर्मूला. We know that, we know everything. Cos theta is equal to A1 A2, B1 B2, C1 C2 divided by square root the squares, दूसरा square root the same squares. समझ में आ रहा है? अभी 6 वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट कर दो. I'll just write the solution यहाँ पे. तो my cos theta will be equal to modulus A1 multiplied by A2 minus m square, B1 multiplied by B2 plus m square, C1 multiplied by C2 again m square divided by square root में ये तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है. तो कैन आई राइट 3m square m square m square m square. सिमिलरली ये तीनों को मल्टीप्लाई ऐड कर स्क्वायर करके ऐड करना है 3m square. सी ये न्यूमेरिकल अगर आपको सिलेबस में थ्योरी में या फिर सीईटी में पूछा गया, मान लो अगर आपको ये नहीं आता, तो हाउ डू यू राइट दिस 6 नंबर्स? 6 नंबर्स पहले कोई भी एक वेरिएबल चूज करके सब नंबर्स के आगे वो सेम वेरिएबल लिख दो और कोई भी एक नंबर को नेगेटिव बना दो. सी यहाँ पे 6 में से एक नंबर नेगेटिव है, तो 5 पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहीं पे भी नेगेटिव नंबर चिपका दो, यहाँ पे वो न्यूमेरिकल को फर्क नहीं पड़ेगा. अभी सिंप्लीफाई करो, माइनस प्लस कैंसिल, cos theta is equal to numerator gives me only m square, root 3 into root 3 is 3, m square का रूट m square का रूट m, वापस m into m square, so it is 3m square. M square cancelled, so now we have cos theta as 1/3 and therefore theta equates to inverse of 1/4, and this is what we have to prove. So ये नंबर आपको थ्योरी के लिए तो प्रूव करना है, पर
सी मान लो सीईटी क्वेश्चन में आपको कॉस की जगह पे अगर साइन दिया तो आपको ये नंबर जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट में फिट करके साइन का नंबर निकालना पड़ेगा। आई हैव शोन यू हाउ टू फाइंड कॉस फ्रॉम साइन, साइन फ्रॉम कॉस, वो सारा पार्ट हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टडी किया है। बट यहाँ पे जनरली दे विल गिव यू कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट परफेक्टली? सो ये न्यूमेरिकल विथ डायग्राम आपको सॉल्व करना है, तो पहले डायग्राम देख लो, नंबर्स कैसे निकाले हैं, फॉर्मूला कैसे यूज किया है, ओवरऑल सब चेक करो। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव सम मोर न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मिसलेनियस, मतलब अनसॉल्व्ड एग्जांपल का लिस्ट, उसमें से थोड़े न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। The next numerical ये एक्चुअली एक MCQ है आपके अनसॉल्व्ड एग्जांपल के लिस्ट में। The numerical says if the modulus of a vector a bar is 3, the mod of a vector b bar is 5 and the modulus of a vector c bar is equal to 7, and they give you a relation a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. Then they have asked you the question, find the angle between the vectors a bar and b bar. See ये न्यूमेरिकल पेज नंबर 188 पे क्वेश्चन नंबर 4 MCQ नंबर 4 है। तो ऑप्शंस आर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री एक्चुअली दो बार प्रिंट हुआ है यहाँ पे। दिस टेक्स्ट बुक हैज अ डजन्स ऑफ मिस्टेक्स, बहुत सारे इसमें करेक्शंस है। तो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द टेक्स्ट बुक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो 30, 45, 60, 90, मान लो अगर ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं तो हाउ डू यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? सी कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना है तो एंगल का जनरल फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है? cos थीटा इज इक्वल टू a bar dot b bar divided by the magnitude of a bar and b bar। तो अगर ये फॉर्मूला मुझे ये इक्वेशन में से अगर प्रिपेयर करना है तो हाउ डू आई प्रिपेयर दैट? जस्ट गो ऑन विद द सॉल्यूशन। दिस इज गिवन टू मी, आई हैव a bar plus b bar plus c bar is equal to 0। now I'll shift this c bar on the RHS, so I have a bar plus b bar is equal to minus c bar। now I will square this equation, so if I say squaring तो RHS में ये ऐसे हो गया। बट अगर आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम लोग वेक्टर्स के स्क्वायर नहीं करते, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पे ये जो a प्लस b का ब्रैकेट स्क्वायर है वो कैसे लिखेंगे हम लोग? मॉड a बार स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मॉड b बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड c बार स्क्वायर। सी आप माइनस c बार का स्क्वायर ले लो या फिर c बार का स्क्वायर ले लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अभी मॉड्यूलस a बार इज गिवन टू मी, आई सब्स्टिट्यूट 9, 3 square, 2 multiplied by what is a bar dot b bar? A bar dot b bar is equal to the cross multiplication of these two, so 2 into bracket mod a mod b cos theta, तो mod a mod b मतलब 15 cos theta, समझ में आ रहा है? प्लस b बार का मॉड्यूलस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर मतलब 49। यहां पे सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए आई जस्ट राइट व्हाट आई हैव यूज्ड, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू मॉड a बार b बार cos थीटा। हो गया, cos थीटा बचा है, उसके वजह से आपको
मिल जाएगा। तो 9 प्लस 25 कितना आता है 34, एंड 34 को अगर आप RHS में शिफ्ट कर दो तो 49 माइनस 34 कितना आएगा 15। सो 2 into 15 cos theta is equal to 15। 15 cancel, it is not 0, 1 आएगा वहां पे। So now I have 2 cos theta is equal to 1, cos theta is equal to half, and if cos theta is equal to half, what value of theta do I have? 60 degree or pi by 3 radians। तो आपके ऑप्शंस में pi by 4 दो बार लिखा है, तो कहीं पे भी आप एक जगह पे pi by 3 का रख दो उसको, and then you take mark the answer। समझ में आ रहा है? Is it simple? तो ये न्यूमेरिकल्स आपके ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको मैं जो सीईटी का बुक आपको देने वाला हूं या फिर जिसके पास है वो सारे न्यूमेरिकल्स वो टेक्स्ट बुक में सीईटी के बुक में अवेलेबल है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू टेक अवे योर सीईटी बुक एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आप काम पे लग जाओगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली 5 to 10 न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स के करते जाओ, सो दैट बाद में लेटर जब कभी भी आपको सिलेबस स्टडी करना हो, यू विल नॉट फील दैट प्रेशर व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। और एक सीईटी क्वेश्चन कर ले फ्रॉम द सेम लिस्ट, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन आई चूज फॉर यू। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, the magnitude of A bar is 3, the magnitude of B bar is 4, then they say that if A bar plus lambda B bar and A bar minus lambda B bar are perpendicular to each other, then find, क्या निकालना है हमको? Lambda. The options given are, and just write the options for you: 9 upon 16, 3 upon 4, 3 upon 2, and 4 upon 3. How do you do this numerical? इसमें आप क्या लॉजिक यूज करोगे? तो यहाँ पे एक टर्म है perpendicular. So if any two vectors are perpendicular to each other, what property do they give us? Their dot product is 0. So now if the vectors are perpendicular, a plus lambda b, a minus lambda b is 0. But now if you see this equation, go back to your 10th standard. A plus b, a minus b, a square minus b square. तो a square मतलब mod का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर mod b square 0. Mod a square from this, what is mod a? 3 उसका स्क्वायर equal to lambda square multiplied by 4 square which is 60. So therefore lambda square is 9 by 60. ऑप्शन है बट ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, आपको निकालना है लैम्डा, तो रूट ले लो। See actually when you take the roots you have a habit of writing, or you should keep a habit of writing plus minus, but since none option has a plus minus sign, I just write the positive term. 9 upon 60 is 3 by 4. So my option is B. See मैंने आपको बहुत बार 11th स्टैंडर्ड में बताया है, सीईटी में कुछ भी नहीं आता है go for B, JEE में कुछ नहीं आता है go for C, but don't make it as a habit of yourself. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, थोड़े बहुत सॉल्यूशन का पार्ट, स्टेप्स का पार्ट आप खुद से भी ट्राई करते जाओ। So shall we stop today? थोड़ा करो, थोड़ा स्टडी करो, पहले का पार्ट रिवाइज करो, आज का जो मैंने सिखाया है वो एक बार आप टैली करो। See this textbook is limitless syllabus का textbook, and as for the new HRD government rules what we have heard yesterday is
government is planning to reduce the syllabus, but then it is of no use for us. अगर आप theory का syllabus भी reduce करते हो, but आपको JEE CET के लिए वो वापस start from the scratch study करना पड़ेगा. तो जितना बन सकता है हम लोग videos में study करेंगे. And what I have heard is कि from July or maybe August, I guess, they will be starting your college and the classes का part. So till then we have to manage with our video lectures. Second point, many students have requested me to take the classroom lectures, मतलब live यहाँ पे आके आप सिखाओ हमें. तो as per the rules, as per the association, we are not allowed to do that. क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कोई भी चेकिंग के लिए आ सकता है. They make sure that we don't conduct the lectures. So what we can do is, again I am telling you, मैंने ये already group पे भी आपको inform करके रखा है कि if you have any doubts, please come to the class as per your timing. मुझे सिर्फ प्रायरली एक बार inform कर दो कि मैं इसके साथ या फिर मैं अकेली जो भी है वो आने वाली हूँ एंड मुझे ये चैप्टर्स के ये डाउट्स हैं. लास्ट वीक में हमारे क्लास के 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं, I won't take their names, but they came to the class. उन्होंने खुद के queries जो भी solve किए हैं घर पे बैठ के, जिसमें उनको कुछ doubts है, they came here, they cleared their doubts and parallelly side by side जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो मैं आपको यहाँ पे लाइव सिखा सकता हूँ. तो don't wait for anyone else to accompany with you. अगर आपको खुद को डाउट है, you have my number, you have the group, आप उस पे पोस्ट कर दो कि मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाली हूँ, मुझे ये डाउट्स है. आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर आवर सिलेबस, आवर बैच एक्चुअली. तो वो स्लाइड में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं वो आप अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि दैट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द होल ईयर. जब तक आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट नहीं करोगे, जब तक आप गाला क्लासेस के साथ हो, तब तक आपको वो पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. So have a good day and stay safe.